evening. Thanks a lot for staying with us here at CNN News 18. You're watching Plain Speak with me, Ridhima Bhatnagar. Almost 40 people have lost their lives in the Saran district in Bihar due to the consumption of illicit liquor. People obtained illicit liquor at a local shop and then felt nauseous and sick. Remember, in 2016, Bihar had prohibited the manufacture, sale and consumption of liquor in the entire state. The prohibition law was amended in 2018, under which some provisions were diluted. But as many lives that have been lost today, the question is still the same. Rather than having accountability of this entire episode, the State Chief Minister Nitish Kumar first blamed the victims and then indulged into a war of words with the BJP. Despite the prohibition law, Bihar has continued selling alcohol in the black market and the sale of spurious liquor has only increased. In October, the Patna High Court had expressed concern about the prohibition law that has now become a new drug culture in the state. The tragedy brings to fore the fact that strict laws just aren't enough to stem this menace. What really is needed is proper regulation and implementation of the law. But this isn't the first case and unfortunately won't be the last one. The year began with 13 deaths in Nitish Kumar's home district, Nalanda. Then 30 died in 3 districts in Holi. In August, there were 11 deaths in Saran and the Diwali toll in the state was 40. Now this half-booked exact story that has been put out to the state government that the accountability also lies on the victim is not cutting ice. Many of those who survive episodes like these have also ended up losing their eyesight. So rather than blaming the victims, shouldn't the government fix accountability? राज्य में पकड़ा रहा है तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? मुख्यमंत्री को जेल जाना चाहिए। इतने सारे गरीब लोग मर रहे हैं और जहरीली शराब सरकार के संरक्षण में बिक रहा है। यह नरसंहार की श्रेणी में आता है और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसे लाल कपड़ा दे के जो सार भड़कता है ना, उस तरह जो है शराबबंदी के बाद कई लोग भड़क रहे हैं। पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तब कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कसम के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे। अभी थोड़ा सांस लेने में दिक्कत है। आँख में कोई दिक्कत? आँख में थोड़ा हल्का धुंधलापन छाते। दिन भर ठीक है, रात भर दवा सुई जब कोनो डॉक्टर लगातार ये सेवन करते हैं शराब? पता नहीं सर, हमार शादी हो गल बा, हम तो रहनी अपना घर। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही. This is what the state chief ministers had to say. So as I said, first blame the victims and then indulge into a political war of words with the BJP. This is what Nitish Kumar had to say. नहीं किया जाएगा। आज जो कर रहे हो ये पूरे बिहार में चलेगा। और कहीं कहीं से बयान देख रहे हैं, दिल्ली में भी बयान देख रहे हैं, हाउस में कहां कहां कह रहा है कि अब बेकार हो गया है बिहार में शराबबंदी, इसको बंद कर। सोच लीजिए जरा, हालत समझ लीजिए कितना गंदा बात है। आई क्राइम को रोकने के लिए कितना पहले से कानून बना हुआ, तब भी हत्या करता है ना, तो क्या कीजिए, कुछ तो आदमी गड़बड़ करता ही है। जो विपक्ष का लोग बोलता है जहरीली शराब से हम मरे, उनसे पूछिए कि आपका जहां जहां शासन है वहां कितना जहरीली शराब से मर रहा है, आप पूछ लीजिए उनसे, कुछ नहीं बोलता। So let's now talk to you about Bihar's killer prohibition. And as I said, this isn't the first case and unfortunately won't be the last one as well. Let's go back to what happened in July 2021. 16 people lost their lives after consuming spurious liquor in Champaran. If you go back to November 2021,
over 20 people died after drinking illicit liquor. The number was 25 in Gopalganj. In March 2022, 18 people dead after consuming spurious liquor in Banka in Bhagalpur. Go back to August of 2022, 12 people lost their lives in a suspected hooch tragedy in Saran district. October 2022, illicit liquor claimed 5 lives in the Rohtas district, and now December 2022, where we're understanding more than 40 people have lost their lives and many suspecting that this death toll could actually rise. So with these numbers in the backdrop, shouldn't the CM, the Chief Minister who's responsible for the state, offer accountability rather than what he is saying? And let me break down the details of what he is saying, because you're first targeting the victim, first targeting your critics also, and then blaming the victims. So what have we heard from the Chief Minister so far? You have all become drunkards. This is what he said to his critics and to the opposition. Then blame the victims, saying liquor is bad, people must be alert. But that was not all. Let's break down the other details as well. He targeted the critics by saying you've backed prohibition in the first place, and then went on to blame the victims, saying when there is a ban, spurious liquor will be sold. Rather than finding solutions, this is what we're hearing from the state government. First targeting the critics again, saying won't tolerate opposition to prohibition, then once again blaming the victims that people should be mindful to not consume liquor. So where does the buck really stop? Does it stop with the victims who've fallen prey to this illicit liquor, or should there be solutions from the state government? But the larger question today is, then is this prohibition law policy just a failed one? And I want to bring you some examples. Let's talk to you about some states that have actually attempted something similar, but they haven't seen results as far as implementation is concerned. Let's begin with Haryana, which gave up attempting liquor ban due to its inability to control illicit distillation and bootlegging. Let's move on to Meghalaya, Mizoram and Manipur, what we saw the northeast part of the country do. They overturned the liquor ban after they failed in execution. Let's talk about Maharashtra. That was a state that imposed prohibition in 2015 in Chandrapur and then withdrew it in 2021. Down south, Tamil Nadu failed to implement a similar policy. Again in Kerala, they gave up attempting liquor ban also because of the implementation. So the larger question that we're asking this evening is, alcohol is banned in Bihar, yet being consumed. Who really is to blame? Let me also now bring in our guest to take this conversation forward to understand what's going wrong in Bihar. Lav Kumar of the JDU will be joining me in the studio. Dhananjay Giri, BJP spokesperson, already joining us. We have Anil Kumar Sahni from the RJD, former Rajya Sabha MP as well. We have Naveen Upadhyay, executive editor, The Pioneer. We also have Nirmal Kaur, ex-DGP Jharkhand, former IPS officer as well. Good to have all of you on the broadcast with us. Anil Kumar Sahni, I'd like to begin the conversation with you. What really is going wrong in Bihar? There is a pattern that is emerging. Who is responsible for the deaths? आज जिस तरह के कमेंट्स हम सुन रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से, ये जो लाइव्स गई हैं उनके परिवार के लिए, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? CNN। अनिल जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? आ रही आवाज जी। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जो ये केस आया है पहली बार नहीं हुआ है बिहार में और आखिरी बार भी नहीं होगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? तो बार बार हम लोग इस बात को उठाते रहे हैं। हम लोग जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार अभी बिहार में चल रही है, तो मैं तो कई बार बोला कि इसका समीक्षा होना चाहिए और हठधर्मी से कुछ नहीं होता है और इस पर समीक्षा करना चाहिए कि आज जो गरीब परिवार मर रहे हैं, खास करके गरीब लोग ही ये जो शराब पिए, आखिर शराब जब बंद है तो कहाँ से रहा है, कौन है? यही तो बात हम लोग भी उठा रहे हैं। तो इस पर जो है सो हठधर्मिता का जो अलाप रहे हैं, इस पर इनको विचार करना चाहिए। और एक अब तो बोलना शुरू कर दिए, जो पिएगा सो मरेगा। भाई पिला कौन रहा है कि लोग पी रहा है?
नहीं, तो मैं वही तो आपसे समझना चाहती हूँ, आज जो ये लोग हैं जिनकी जानें जा चुकी हैं, उनके परिवार वालों को क्या आश्वासन दिया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार ले रही है या नहीं ले रही है? ये सरकार तो इसकी जिम्मेवारी नहीं ले रही है। यहाँ तक कि कबीर अंतोष्टि जो मिलता है वो भी नहीं मिल रहा है इन लोगों को। तो इसमें तो मैं जब सरकार भाजपा के साथ जब सरकार चल रही थी नीतीश जी का, तो उस समय जब बेतिया में कुछ लोग मरे थे, मुजफ्फरपुर में मरे थे, तो हमने इस बात को उठाया था कि इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। जो लोग शराब से मर रहा है, जब शराब बंदी है तो आखिर पी कैसे रहे हैं, मुआवजा मिलना चाहिए। मगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोलते हैं मुआवजा किस बात की, जो पिएगा सो मरेगा, यह नियम है। तो भाई पिला कौन रहा है और कहाँ से शराब आ रहा है? गरीब आदमी जो दिन भर थका मदा रहता है, वो जो कुछ तारी या शराब पीता है उसमें भी जहर मिले, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, इसका भी तय करना चाहिए और इस पर समीक्षा होना चाहिए। अच्छा, लव कुमार जी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो ये जाने गई हैं उनका जिम्मेदारी कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेती है? देखिए, जिम्मेवारी तो अभी जहाँ एक मिनट लव कुमार जी, एक मिनट अनिल कुमार जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। मैं लव कुमार जी से पूछ रही थी क्योंकि मैं पूछना चाहती हूँ कि जिम्मेदारी कौन ले रहा है, आज जवाबदारी कहाँ से आएगी? देखिए रिद्धिमा जी, मौत निश्चित तौर पर दुखद है और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी हम लोग बहुत पुरजोर कोशिश करेंगे। और निश्चित तौर पर जो भी घटनाएं घटती है वहां सरकार संवेदनशील है, जिसको जिसको जिम्मेवार समझा गया उन पे कार्रवाई भी करी गई है और आगे भी कार्रवाई करी जाएगी। और 88 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है, वहां के एसएचओ को सस्पेंड किया गया है, डीएसपी पर कार्रवाई के लिए लिखा गया है। तो निश्चित तौर पर सरकार इसमें गंभीर है। लेकिन नहीं, आप कह रहे हैं सरकार गंभीर है। जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने जो कमेंट दिया है, मैंने शो उसके साथ शुरुआत करी थी, उन्होंने कहा है जो पिएगा वो तो मरेगा ही। तो आप इसका एक मजाक बना रहे हैं। जो लोग आज अपनी जान गंवा चुके हैं या जो हॉस्पिटल में हैं, उनके परिवार वाले क्या सोच रहे होंगे कि सरकार तो हमारे कोई ध्यान रखना ही नहीं चाहती है। रिद्धिमा जी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सरकार ने बहुत सारा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है। हमने मानव चेन बनाया, 2-2 बार मानव चेन बनाया, सभी लोगों को अवेयर करने का प्रयास किया गया है और लगातार इस बात को समझाया गया है कि शराब बहुत बुरी चीज है, शराब एक सामाजिक बुराई है। इस कुरीति को मिटाने के लिए हमने इतना बड़ा कदम उठाया है। और उसके बाद भी जब शराब बंदी है, उसके बाद भी अगर आप खुद ही सोचिए, कोई जहर पिएगा तो मरेगा ही, इसमें कहां कोई दो मत है। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और हमने बहुत सारी कार्रवाई की है। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना लव कुमार जी कि सरकार अपने हाथ पीछे खींच लेगी कि लोग जो अपने आप कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर वो जहर पीते हैं तो पीने दीजिए, जाने जाती हैं तो जाने दीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। आप इलेक्टेड सरकार हैं, लोगों की आपसे काफी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तभी आपको पार में वो लोग इलेक्ट करते हैं। सही बात है या नहीं? तो इसलिए आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती होंगी। अगर आप एक लॉ और पॉलिसी लाते हैं और अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, अगर उसका फेलियर होता है तो उसको हटा दीजिए। नहीं, बिल्कुल फेलियर नहीं है रिद्धिमा जी, मैं यही बात समझाना चाह रहा हूं। 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी है इस बिहार की और हमने जब से शराबबंदी कानून लाया है, करोड़ों लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। हमने वहां की महिलाओं के मांग पर शराबबंदी जैसा कानून लाया था। इतना बड़ा राजस्व लॉस हमने सहा है। बिहार जैसे कम संसाधन के राज्य में जो सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला विभाग था, अगर वहां पर चोट पहुंचाने की हिम्मत की है आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और इतने दृढ़ता के साथ अपने निर्णय के साथ समझना चाहती हूँ कि ये बार बार हो क्यों रहा है, इसका जवाब हमें नहीं मिल पा रहा है आपकी किसी भी स्पोक्स पर्सन या लीडर से। जैसे मैंने जब शो शुरुआत करी, अभी तक कम से कम 100 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया, चंपारण में, गोपालगंज में, बांका में, हर बार आप लोग बाहर आके यही चीज बोलते हैं कि अगर लोग अपने मन से कुछ कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो आपकी पॉलिसी है उसकी इंप्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी गड़बड़ है। नहीं रिद्धिमा जी, पॉलिसी का हमने बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया है और सबको सामाजिक रूप से सबको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। सभी पार्टी को, सामाजिक संगठन को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अगर हमारे बगल में कोई गड़बड़ करता है तो हम टोल फ्री नंबर दिए हैं, उस पर कार्रवाई करें। लेकिन एक चीज समझनी पड़ेगी आपको, ये नेक्सस सिर्फ बिहार में है या पूरे देश में है? बिहार में तो शराबबंदी है इसलिए कच्ची शराब बन जा रही है। उत्तर प्रदेश में तो शराबबंदी नहीं है। पिछले साल का आंकड़ा उठाकर देखिए, 137 लोगों की मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश में तो शराबबंदी नहीं है, 109 लोगों की मृत्यु हुई।
कर्नाटका में तो शराबबंदी नहीं है, 104 लोगों की मृत्यु हुई। पंजाब में शराबबंदी नहीं है, 127 लोगों की मृत्यु हुई। हरियाणा में 90 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। तो वो तो आपका छोड़ क्या दीजिए, ये कहना है कि जहां शराबबंदी की शराबबंदी वजह है, से जाने नहीं गई है? क्या आपका ये कहना है? रिद्धिमा जी, जहां शराबबंदी है, जैसे गुजरात में है, 25 जुलाई को आपने देखा 57 लोगों की मृत्यु हुई। कैसे हो गई? तो निश्चित तौर पर कुछ लोग ऐसे हैं जो गड़बड़ करने वाले लोग होते हैं, गलत करते हैं। हम उन पर हमेशा कार्रवाई भी करते हैं और आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। 70,000 ऐसे लोग बंद हैं। ये तो अच्छा है कि आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, पर जो जिस तरह के हम कमेंट सुन रहे थे चीफ मिनिस्टर से, वो काफी लोगों को चौंका दिया है कि अगर चीफ मिनिस्टर और स्टेट गवर्नमेंट ही अगर आश्वासन नहीं देगी लोगों को, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? पर अब रुकिए मेरे साथ, आई वांट टू ब्रिंग इन द अदर गेस्ट आल्सो। धनंजय जी, आई वांट टू ब्रिंग यू इन द कॉन्वर्सेशन। अगर आपने सुना लव कुमार जी क्या कह रहे हैं, और उनका ये कहना है कि आप सिर्फ बिहार को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश में देखिए क्या हो रहा है, 130 से ज्यादा जाने गई हैं। आप बाकी स्टेट्स में देखिए, वहां पर तो शराबबंदी नहीं है। तो आप शराबबंदी की पॉलिसी को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो आसान है। आज सबसे बड़ी बात है कि कहीं के निजाम ने ये कहा, स्टेटमेंट दिया, कहीं के मुख्यमंत्री ने कहा कि पियोगे तो मरोगे। ऐसी असंवेदनशील भाषा का इस्तेमाल क्या किसी मुख्यमंत्री ने किया? किसी सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति ने किया? नहीं किया। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार जी गड़बड़ाहट में, बौखलाहट में, घबराहट में और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के फेल्योर को देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जो 5 लाख केसेस बिहार में चल रहे हैं शराबबंदी के, 2.5 करोड़ लीटर शराब जब्त हुआ है और शराब बिहार में भगवान की तरह है। आप जहां भी स्मरण करें, शराब की बोतल हाजिर हो जाएगी। आने वाली बिहार की नस्ल को बर्बाद करने का श्रेय आदरणीय नीतीश कुमार को जाता है। वहां का जो युवा, जो जवान हो रहा है, वो शराबबंदी के अवैध धंधे का हिस्सा बन चुका है। पुलिस और वहां के लोगों का, अपराधियों का एक नेक्सस कायम हो चुका है, जिसमें शराब को हाजिर करने का, शराब के व्यवसाय, पहले 11% अल्कोहल का कंजम्पशन था बिहार में, अब 14.3% हो गया है। इस टाइम पर एक सवाल फिर और खड़ा होता है ना कि आज तो बीजेपी ये सब बोल रही है क्योंकि जो महागठबंधन है, और नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। जब नीतीश कुमार और बीजेपी साथ थे तो तब आपने ये सवाल क्यों नहीं खड़े करे? ये सवाल भी आज खड़ा होता है ना। देखिए, हम सरकार में रहे न रहे, जन सरोकार में पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। जन सरोकार से उठे हुए जो मुद्दे जब भी आएंगे, हम सजग रूप से प्रहरी के रूप में खड़े होंगे। पहले भी खड़े होते थे और आज भी खड़े होंगे और आगे भी खड़े होंगे। चूंकि लॉ एंड ऑर्डर, गृह विभाग, सामान्य प्रशासन लंबे समय से 17-18 साल से, लालू यादव के बाद जो ट्रांसफर हुआ राबड़ी देवी से, तो नीतीश कुमार के पास है। तो जिम्मेदारी जिस व्यक्ति की बनती है, दायित्व जिस व्यक्ति का बनता है, वो व्यक्ति दायित्व से पल्ला झाड़ ले, कहे कि पियोगे तो मरोगे, तो कह देते कि भाई बिहार में रहोगे तो मरोगे, मेरे सरबराही में रहोगे तो मरोगे, नीतीश के राज में रहोगे तो मरोगे, तो सीधे कह देते। ये नीतीश की सरकार है कि नरपिशाच की सरकार है, ये सोचने वाली बात है। ये स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की चीज भयावह हो गई कि बिहार में धनंजय जी 4 महीने में भयावह हो गई क्या है? और केसेस की जो संख्या है, वो जुल्म जबर जो स्थिति जो बिहार में बनी हुई है, वो चिंतनीय है, वो दयनीय है। और सबसे बड़ी बात है रिद्धिमा जी, आप सरकार का असंवेदनशील हो जाना, सरकार का लोगों की मौत हो रही है और सरकार, ये तो वैसा ही है कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, बिहार जल रहा है। नीतीश कुमार नहीं, धनंजय जी जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं वो तो सही सवाल है, पर जेडीयू का ये भी कहना है और जो ऑपोजिशन उनका ये भी कहना, जो सरकार है उनका ये भी कहना है कि आपकी टाइमिंग बड़ी कन्वीनियंट है, कि आपने बड़े जल्दी अपना पल्ला चेंज कर लिया है। तो या तो अगर आपको पॉलिसी के जो कोर है उससे अगर इश्यूज थे तो ये सवाल आपने पहले क्यों नहीं खड़े करे? आज टाइमिंग बहुत कन्वीनियंट बन जाती है। अच्छा, लव कुमार जी, धनंजय जी, रुकिए, लेट मी ब्रिंग इन आवर अदर गेस्ट एज वेल. Naveen, I want to bring you in the conversation. Keeping this political war of words aside, what I essentially want to understand for the benefit of our viewers as well, what is the problem in Bihar? Is it because there is a prohibition policy or is it because the implementation has failed? You see, I think this whole prohibition is, according to me, it's a farce. You know, I am from Bihar and I can challenge you, I can take anyone along with me. Any part of Bihar you can easily procure liquor. I think the intention behind Nitish Kumar, I know very well. He is a noble man and he really wanted to change the face of Bihar and he has considerably done that. But this is one aspect where I think it is become his personal ego and he wants to implement it at whatever
cost he has to pay politically or otherwise also. So if you look at it, it is a complete failure because Bihar police and enforcing authorities, they are not trained, they don't have equipment, they are not equipped to deal with such a massive task. It is a landlocked state, it is a bordering Nepal, Uttar Pradesh, then you have Jharkhand where liquor is easily available. I will just give you a small example. Sitting in Delhi, you have cheaper liquor available in Haryana, and every day you see people go and violate all laws and smuggle liquor to Delhi. So when it is happening in Delhi, it's impossible to stop liquor smuggling. It has become a very, very big menace, and I can tell you, it's shocking because all unemployed youth, they have formed cartels in villages, and now you have criminal syndicates operating, organized gangs operating in Bihar, and I think sooner or later they are going to influence our politics, our society. I personally feel that this should be reviewed. Of course, I agree with you that BJP has no moral right, because BJP, in the name of moral policing, was all along in Bihar, was more eager to implement it than Nitish Kumar. Suddenly now they are saying that this Nitish Kumar has gone berserk. Let me tell you 30 seconds I will take more. Okay. When people are criticizing Nitish Kumar's statement that he has said that people who consume liquor will die, I am not surprised, because you see, I mean, this is a matter of fact. If you consume illicit liquor, then definitely you have to be ready to face the consequences. But where is the illicit liquor coming from, and shouldn't the state government be able to implement as far as containing that availability of spurious liquor? That is the responsibility of the state government. You might think that people might drink poison and then they will die, but as an elected representative, as a chief minister of the state, should you be making these comments and trivializing what the victims are going through? But I'll just request the panelists to stay on with us. Naveen, I'll just request you to stay on with us, because we're getting a piece of breaking developments also now coming in. Now, amid this spurious liquor scandal in Chapra, the News 18 investigation team is making a big disclosure. The spurious liquor has not come from anywhere else but has disappeared from the police station. The excise department had seized a large quantity of raw spirit and kept it for destruction, but the administrative officials forgot to destroy it. So the excise department has started an investigation into this entire matter. सर, ऐसा कहा जा रहा है कि थाने में जो जब शराब रखी गई है उसको ठीक से नहीं रखा गया, यहाँ से भी गड़बड़ियाँ हो सकती है, क्या सच्चाई है इसमें? ये हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। हम लोग को जिला पदाधिकारी द्वारा डायरेक्शन मिला है कि सभी थाने में जो भी स्पिरिट का कंसाइनमेंट रखा हुआ है, यदि वो किसी कारण से विनष्ट नहीं हुआ है, कभी का है, तो उसको हम लोग सैंपल भेजेंगे जांच करने के लिए। कितने दिनों से विनष्ट नहीं हुआ है सर? कितने दिन पहले? ये सब एक्चुअली अभी केस नंबर से खंगाला जा रहा है, किस केस का, जैसे ही कुछ जानकारी मिलेगी आप लोगों को बताया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से खुले में रखा गया है, कोई सुरक्षा अभी ये तो जांच का विषय है। हम लोग देख रहे हैं क्या कितना पकड़ा गया था, कितना अभी प्रेजेंट है, और किस कारण से, यदि नहीं है तो किस कारण से नहीं है, सारा कुछ लिखा होगा केस रजिस्टर में। उसके बाद जो भी हम लोग को ये मिलेगा आप लोगों को बताएगा। And let me also bring in my colleague from News 18 Bihar and Jharkhand, Santosh Gupta, who in fact has carried out this investigation. Santosh, हमने देखा आपकी इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स, क्या बिग डिस्क्लोजर क्या है? देखिए, ये बहुत बड़ा मामला है। बिहार के जब शराबबंदी हुई थी तो उसके बाद एक नियम बना था कि जो भी थाने में शराब जब्त की जाएगी उसे एक तय समय के अंदर नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन मसरख थाना में एक बड़ी लापरवाही बरती गई है। हजारों लीटर स्पिरिट जो कि जहरीला होता है, जिसे अगर कंज्यूम किया जाए तो उसमें आदमी की जान जा सकती है, इंसानी जिंदगी के लिए वो खतरनाक है, उस पर लिखा भी हुआ उस डब्बे पर। उसमें बड़ी मात्रा में डिसलोकेट किया गया, उसको वहां पे थाने से गायब किया गया है, जो हमारे पास जानकारी है। आप देख सकते हैं जो जब्त शराब है उसके ड्रम जो है उसके ढक्कन खुले हुए हैं, उसमें से स्पिरिट गायब है। कई ऐसे ड्रम है जिसमें से स्पिरिट गायब है। तो ये आशंका व्यक्त की जा रही है क्योंकि जिस इलाके में ये जहरीली शराब कांड हुई है उसमें लोग मरे हैं, उस इलाके का चौकीदार सीधे तौर पर दोषी पाया गया है। उस इलाके के चौकीदार पर आरोप लगाया गया है कि उसकी लापरवाही से उसके इलाके में ये शराब उपलब्ध कराई गई, और जो इलाके के लोग हैं उन लोगों का भी कहना है कि चौकीदार ने शराब उपलब्ध कराई थी। तो आशंका व्यक्त की जा रही है कि थाने में जो शराब जब्त करके रखा गया है, चौकीदार द्वारा चोरी करके उस
शराब को उपलब्ध कराई गई है उस गांव के लोगों को जिसको पीने से मौत हुई है, और अन्य जगह भी वो शराब सप्लाई हुई है, कहीं ना कहीं बेचा गया है, उसकी खरीद बिक्री की गई है। तो ये आशंका नहीं है, ये एक आरोप है। आरोप के आधार पर ये विभाग ने जांच कर दी। उत्पाद विभाग के बड़े अधिकारी पहुंचे थे, सचिव स्तर के 2 अधिकारियों की टीम पहुंची थी, सैंपल लिए गए हैं, लैब को भेजे गए हैं, जांच की जा रही है कि क्या ये स्प्रिट जहरीला है। पहले तो जांच ये करनी है कि जो थाने से स्प्रिट गायब हुआ क्या वो जहरीला है, उसे इंसानी जिंदगी को कोई खतरा है। इस आधार पे जांच के लिए पटना लैब में भेजा गया है और आगे ये जांच करेगी क्वांटिटी क्या है, चूंकि ये जो हमें जानकारी मिली है कि जो स्प्रिट रखा गया है जिसे शराब के रूप में कंज्यूम किया गया है, ये काफी लंबे समय से रखा गया, जो बताया 2002 से 2008 से बने पुराने केसेज में जब्त किए गए थे। तो उन केसों की डायरी भी निकाली जा रही है, उसको भी मिलाया जा रहा है कि कितना स्प्रिट जब्त किया गया था और उसकी वर्तमान क्वांटिटी क्या है, किस आधार पर वो अगर जब्त था तो आखिर वो स्प्रिट थाने से कहाँ गया है, किन लोगों की जिम्मेदारी तय की गई है। इन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। प्रशासन जांच की बात कह के भले इस मामले को दबाने की कोशिश करे, लेकिन एक बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ जरूर सामने हुई है कि जिस तरह से ये स्प्रिट रखे गए थे खुले में, उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो सकता था। जी बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। A lot of questions still remain unanswered. Santosh, thanks a lot for getting us all those details. Is there a larger nexus at play between the police and the mafia? And this is exactly what I want to bring in Nirmal Kaur also. Ma'am, thank you for patiently waiting. I apologize I couldn't come to you earlier. But look at this piece of breaking development that we just put out. Spirit goes missing. We don't know the quantity. Is there a larger nexus at play between the police and the mafia? Do you think that's a possibility? I think definitely there's a possibility, because I think a year or two ago we heard that, liquor which was seized and kept at the Thana, they say it was rats drank it. It was a joke. They made a joke out of it. So I think whatever the stocks that are seized and put at the police station, they're not being properly destroyed, and perhaps they are coming back into the market, and the whole organized gang or in standalone kind of ways, they are finding their way to the market and to the consumer. And this kind of raw spirits or this hooch, these tragedies are happening. They are recurring. They are happening over and over again. That means no real effort is being made to control them. Not, you can't just say sitting in the assembly hall that I have this prohibition policy. It takes a lot of hard work to take it to grassroots level and implement it. If you are not even aware that you have stocks of raw spirit lying in your thanas for ages and for ages, what is the point in having such a policy? If you have a policy, implement it. Or have your civil service or your police or your district administration or your excise department, have it, have a proper review and have it periodically destroyed as soon as possible. If it finds its way to the market, the whole process, the whole purpose is defeated. And it is a fact, that this prohibition remains only in name. Yeah. Because in Bihar, liquor is easily available. And this liquor prohibition policy, though very noble in its, when we hear about it, But what I also want to understand... But unless you implement it. I know implementation is a big challenge. But what I'm essentially also trying to understand, are we putting too much onus as far as the prohibition policy itself is concerned? Because I put out some statistics when I started the show. If you look at a state like Uttar Pradesh or some others which actually don't have a prohibition policy, the death rate there actually is the highest. So what really is the issue then? The issue is this cheap liquor, raw spirits coming to the market and being sold, the cheap hooch being sold, bootlegging. Bootlegging is prevalent, whether there's a prohibition policy or not. And in Bihar also today, the well-to-do people are not drinking hooch. They're not drinking raw spirits. They are able to get proper Indian-made foreign liquor or proper, your foreign single malt or whatever you want, you have it in Bihar. It's only the poor that fall for these things, and it's really sad, they die and lose their eyesight, lose their livelihood. It's sad, So this raw spirits and controlling that is very, very important. Yeah. That, of course, implementation is a huge challenge. And then, of course, trying to, contain the supply which is easily available to these people, that also is a huge challenge. लव कुमार जी, मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं आखिरी वर्ड आपको देना चाहूँगी। आपने सारे पैनलिस्ट को सुन लिया है, सब यही कह रहे हैं कि आज बहुत आसान है अगर नीतीश कुमार जी सामने आते हैं और विक्टिम्स को ब्लेम करते हैं। क्या सरकार इस समय, क्योंकि 100 जानें ऑलरेडी जा चुकी हैं इस साल में, और अभी जो लेटेस्ट ट्रेजेडी है इसका डेथ टोल बढ़ जाएगा, हमें नहीं पता, क्या सरकार आज मान रही है कि जो प्रोहिबिशन पॉलिसी है उसमें अभी भी कुछ काम की जरूरत है या उसमें कुछ इश्यूज है? देखिए रिद्धिमा जी, सुधार की
प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। जब तक मानव सभ्यता रहेगा, समाज रहेगा, तब तक सुधार की प्रक्रिया रहेगी। लेकिन जितना बड़ा काम किया गया है सामाजिक सुधार को लेकर, उसका परिणाम भी दिखा है। 75% रोड एक्सीडेंट में कमी हुई है, महिलाओं की छेड़खानी में 70 से 80% की कमी हुई है। ये बहुत बड़ा चेंज आया है बिहार में, और एक मतलब ऐसा चेंज है जो सामाजिक रूप से पूरे देश में स्वीकार किया जाएगा आगे चलकर। क्योंकि शराब, अभी कोई भी नीति लागू करिएगा तो एक बैकअप इलेक्ट्रिक का स्विच नहीं है कि ऑन किया तो पूरी तरह से लाइट जल गई, ऑफ किया तो पूरी तरह से खत्म हो गई। जो आदतें हैं उसमें कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हम उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा था, मैं ये जी। समझना चाहती हूँ, क्या सरकार में आज एक ऐसी थिंकिंग है कि ये पॉलिसी जो है इसको हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, ये अब नहीं काम कर रही है, इसको हटा देनी चाहिए? क्योंकि इसका जो ऑपोजिट व्यू है कि आप एक बिजनेस को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। और अब बिहार को अगर एक स्टेट की तरह देखें, वो एक बहुत पॉजिटिव स्टेट नहीं है, वो डेफिसिट में ही है। तो आज सरकार में क्या ऐसी थिंकिंग है कि ये पॉलिसी काम नहीं कर रही है, इसको हटा देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस भी आया है। करोड़ों लोगों ने शराब पीना छोड़ा है, करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इसको पॉजिटिव पॉइंट को भी देखिएगा ना। नीतीश कुमार जी ने जो एक कदम उठाया है, बहुत सोच समझ के उठाया। इतना बड़ा रेवेन्यू लॉस होने के बाद भी उन्होंने इस कदम से एक कदम भी अपने आप को पीछे नहीं खींचा, इसलिए कि इससे समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। बहुत बड़े तबकों के घर में शांति सुख लौटी है। 50% जो महिलाएं हैं हमसे जो मांग कर रही थी, उनके चेहरे पे खुशी हुई है। हम आपकी बात पूरी तरीके से मानते, अगर जो नंबर्स हैं वो भी ये corroborate करते, but unfortunately the story with the numbers is very, very different. The intent might have been good, that we want to, take people away from addiction of alcohol, we want to bring peace to families. But as I said, more than 100 lives lost just in this year alone. A lot of thinking that needs to be done as far as the state government is concerned. Unfortunately, I've completely run out of time. I'll have to leave that conversation there. I'd like to thank all our guests as well. Thank you.